welcome back, and today we are going to discuss here class 10 science chapter 6 life processes activities 6.1 to 6.8. In my previous video we have discussed all the exercise and in-text question of chapter 6, and I want to say you something that if you are new in our channel then please subscribe, because we are discussing here all the chapters of science. We are discussing chapter wise all the activities, in text question and answers, exercise question and answers, and also additional question and answers. And if you want to get all the latest updates then you have to subscribe my channel. Okay, so let's get started. Activity 6.1 is take a potted plant with variegated leaves, for example, money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it, and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. इस एक्टिविटीज़ में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसके आंसर देते हैं. तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज what happens to the color of the leaf and what is the color of the solution. अब देखिए, जब हम हरे पत्ते को यानी कि ग्रीन लीफ को अल्कोहल के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगी. आप इमेज में भी देख सकते हैं, उसका ग्रीन कलर था और अब वो बिल्कुल कलरलेस है. ठीक है, जब हम ग्रीन लीफ को अल्कोहल के अंदर डालते हैं तो जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन कलर देने के लिए किसी भी लीफ को. ठीक है, लेकिन वो ग्रीन कलर जो है यानी कि क्लोरोफिल जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी अल्कोहल में, इसीलिए जो अल्कोहल का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा और जो लीफ का कलर है वो कलरलेस हो जाएगा. ओके, now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing the leaf done in the beginning. And now the second question is, what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? अब हम लीफ के स्टार्च की प्रेजेंस के बारे में बताएंगे. सो द आंसर इज, जब हम किसी हरे पत्ते को आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा. ये डार्क ब्लू कलर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को, कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है. और जो कलरलेस पार्ट है वो ये बताता है कि यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन है ही नहीं. और इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना. तो अभी मैंने बताया था कि जब हमने अल्कोहल के अंदर डाला तो क्लोरोफिल जो है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो गई और अल्कोहल जो है वो ग्रीन कलर में हो गई. नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 6.2. Take two healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plants with separate bell jars as shown in figure. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plates so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. अब आप यहाँ पे दो प्लांट्स देख सकते हैं जो कि सेम ही साइज के हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया. फर्स्ट वन इज, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च. क्या
दोनों प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च की प्रेजेंस है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, दोनों प्लांट्स के लीव्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो स्टार्च बनता है वो सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनता है। और जैसे कि हमें एक्टिविटी में बताया गया कि फर्स्ट स्टेप सेट ऑफ प्लांट में स्टार्च की अवेलेबिलिटी कम होगी क्योंकि वहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेकंड सेट ऑफ प्लांट है वहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च अवेलेबल होगा क्योंकि वहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटीज का क्या परिणाम निकला? From this activity, we can conclude that amount of carbon dioxide essentially affect the process of outcomes of photosynthesis. Now moving to the activity 6.3. Take 1 ml starch solution. 1 ml का मतलब है 1%. In two test tubes A and B. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tube undistributed for 20 to 30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tube. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज? कौन सी टेस्ट ट्यूब में? 2 टेस्ट ट्यूब थी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने स्टार्च डाला था 1%, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा ऐड करी थी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा ऐड नहीं करी थी। तो रिजल्ट क्या मिला? तो यहाँ पर देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि वी विल ऑब्जर्व अ कलर चेंज इन टेस्ट ट्यूब बी। हमें टेस्ट ट्यूब बी में कलर चेंज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवा ऐड किया था। ठीक है, शोइंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप देखिए जो टेस्ट ट्यूब बी है यहाँ पर हमें स्टार्च की प्रेजेंस दिखेगी, वेरियस टेस्ट ट्यूब ए में विल शो नो कलर चेंज, कि यहाँ पर कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर सलाइवा ऐड किया था और जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? शुगर में। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब? तो हमें क्या बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में, इट इंडिकेट्स दैट टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट कंटेन स्टार्च। हमें ये बता रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए जो है इसमें स्टार्च नहीं है, वेयर एज टेस्ट ट्यूब बी डज कंटेन स्टार्च। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? It tells us that on addition of saliva in starch solution, the starch gets converted into some other products, जिसको कि हम शुगर बोल सकते हैं। Activity 6.4 is take some freshly prepared lime water in a test tube. Blow air through this lime water. Now, first question is note how long it takes for the lime water to turn milky. Now, the answer of this question is when we blow air through mouth, the lime water is test tube turn milky within no time. ठीक है, जब हम अपने माउथ से एयर को ब्लो कर रहे हैं लाइम वाटर के अंदर तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा मिल्की होने में। ठीक है, यूज अ syringe और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। And the question number 2 is now note how long it takes for this time water to turn milky. मतलब अगर हम किसी syringe से, यानी कि जिससे हमें इंजेक्शन वगैरह कई बार लगता है, या फिर उस syringe से जो है ब्लो करके देखिए एयर को, या पिचकारी से ब्लो करके देखिए, तब कितना टाइम लगता है। When we use syringe और पिचकारी to passes air through the lime solution, it takes much time. ये ज़्यादा टाइम लेगा and effort to turn the lime water milky. lime water milky तो होगा लेकिन lime water milky होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। And the third one question is what does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? ओके, क्योंकि हम ब्लो कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, देन दिस इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज
मच मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयर आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं अपने माउथ के अंदर से, उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अपने माउथ से ब्लो कर रहे हैं यानी कि ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। Now activity 6.5 is take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a 1-hole cork. Fill the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. And the question number 1 is, what change is observed in the lime water and how long does it take for the change to occur? इस प्रोसेस में लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी फ्रूट जूस में या फिर शुगर सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, उसमें हम ईस्ट मिक्स करते हैं, ठीक है, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमें बताता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। Now activity 6.6, question number 1 is observe fish in the aquarium. They open and close their mouths and the gill slits, okay, behind their eyes also open and close. All the timings of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि माउथ की क्लोजिंग और ओपनिंग और गिल स्लिट्स जो है क्या वो सेम मैनर में होता है? तो इसका आंसर है येस, द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स आर कोऑर्डिनेटेड, दे ओपन एंड क्लोज अल्टरनेटिवली, ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। 1 मिनट में कितनी बार फिश जो है अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है? तो आंसर इज दिस वेरीज फ्रॉम फिश टू फिश। ये फिश टू फिश में वेरी करता है, फिश छोटी है या बड़ी है। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो बच्चों में जो ब्रीथ रेट बड़ी तेज़ी से होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट थोड़ी सी कम होती जाती है। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। दिस वेरीज फ्रॉम फिश टू फिश। साइज एंड स्टेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फिश। आप इसको खुद भी, अगर आपके घर में एक्वेरियम है या कहीं और है, तो आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। मतलब हमारे कंपेयर में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना रहेगा, ठीक है। एज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच लेस इन डिजॉल्व वाटर इन वाटर। अब देखिए, जो वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होती है, ठीक है, देन इन ओपन एयर। एंड देयरफॉर फिश ब्रीथ एट हायर रेट देन अस टू फुलफिल द डिमांड फॉर रेस्पिरेशन। इसीलिए फिश जो है वो बहुत ही तेज़ी से ब्रीथ करती है वाटर के अंदर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। नाउ एक्टिविटी 6.7 इज दिस इज सेकेंड लास्ट एक्टिविटी। एंड ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है, इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में आपको सारी एक्टिविटीज़, सारे टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। उसमें मैं पूरा चैप्टर 6 जो है वो अपलोड करूँगी, जिसमें कि सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके आएंगे, सारी एक्सरसाइज आएंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ ही मैं उसमें डालूँगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 6.7, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। अब इन्होंने पूछा ये कि आप हेल्थ सेंटर में जाइए, यानी किसी भी लैब में चले जाइए जो आपके एरिया में मौजूद हो, ठीक है। उसमें आप हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है हर ह्यूमन बीइंग्स में क्या सेम है या कम ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज 13.8 to 17.2 ग्राम
per deciliter in men and 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर इन वुमेन। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है मेंस में थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है एज़ कंपेरिजन टू द वुमेन। जिस तरह से उन्होंने बोला कि मेंस में क्या नॉर्मल रेंज देखने के लिए मिला 13.8 टू 17.2, बट वुमेन्स में क्या देखने के लिए मिला 12.1 टू 15.1 ग्राम। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? क्या चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए क्या ये सेम रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज इन एडल्ट मैन एंड वुमेन इट रेंजेस फ्रॉम 12.1 टू 17.2 ग्राम per deciliter, whereas in children it is 11 to 16 gram per decimeter. And the question number 3 is there any difference in the hemoglobin levels for men and women? क्या कोई डिफरेंस पाया जाता है मेंस और वुमेन में जो हीमोग्लोबिन का लेवल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, एज मेंशन अर्लियर, हमने पहले ही इस बारे में अभी डिस्कस किया है कि जो मेंस होते हैं उनमें नॉर्मल रेंज 13.8 टू 17.2 ग्राम है और वुमेन में 12.1 टू 15.1 ग्राम है ना। तो फॉर वुमेन इट इज़ 13.8 टू 17.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर एंड फॉर वुमेन वो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विजिट वेटरिनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी। वेटरिनरी क्लिनिक कौन सा होता है? जहाँ एनिमल्स की बॉडी की जांच होती है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बुफेलो और काउ, ठीक है। अब हमने हीमोग्लोबिन की रेंज किस में देखनी है? बुफेलो और काउ में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? The normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or cow is 10.4 to 16.4 gram per decimeter. Okay, and the question number 5 is this content difference in calves, मेल एंड फीमेल एनिमल्स? क्या आप इसमें डिफरेंट पाते हैं अगर मेल एंड फीमेल एनिमल, जैसे कि हमने मेंस और वुमेन्स के बारे में देखा उसमें हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज डिफरेंट थी, क्या ऐसा जानवरों में भी होता है? Yes, hemoglobin content in calves is higher than male and female animals. Okay, and the question number 6 is compare the difference seen in male and female human beings and animals. यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और कैटल्स का अलग अलग कि किसमें ही कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो सब लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन? तो आप डिफरेंस को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? नाउ द आंसर इज वी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक प्लेस ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड capsules and has a very high affinity for oxygen. Adult men do more work than women and children. Thus, to meet the energy requirement, more oxygen is needed and in turn more hemoglobin contents. Due to requirement of varied level of oxygen for executing different types of work, the hemoglobin content in human beings are comparatively more than that of एनिमल्स। तो हमने यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? क्यों मेंस में ज़्यादा और वुमेन्स में कम पाया जाता है? इसीलिए क्योंकि मेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं एज कंपेरिजन टू द वुमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि वो काम करते हैं, काम के दौरान वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा लेंगे उससे हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6.8 इज take two small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have a plant in it. Okay, place a stick of the same height as a plant in the other pot. Cover the soil in both pots and with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. Cover both sets, one with the plant and the other with the stick, with plastic sheets and place in bright sunlight for half an hour. And question number 1 is, do you observe any difference in the two cases?
The answer is yes, we can see water droplets in the plastic sheet covering the pot with the plant. This plant droplets are formed due to condensation of water vapor released by the plant out of transpiration, while there is no water drops in other pot which has stick. ओके तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो प्लीज़ व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.